Okay, beta. First, let's discuss few word problems. Beta, very common questions that comes in exams, right? Very simple, again, very easy questions. But there is a way, there is a technique to do them, right? So, what is the concept? मैं बेटा आपसे वो discuss करता हूँ, right? Beta, remember that sets के जो word problems हैं, normally we solve them by the help of Venn diagrams. We draw a Venn diagram, so the information is very clearly placed inside the sets, and then it becomes 1 plus 1. You can just add or subtract the information, and that is how you do it. Okay? So I'll just tell you how to do this question. Acha ji beta, let's read the question first. In a class of 30 girls, okay, so total beta hum likh lete hain, let's write. So total you have 30 girls in a class, total there are 30 students, okay. 18 play netball, right? So n is the girl universal set, but आपको given a girls in the class. N is the girls who play netball, H girls who play hockey, right? Briefly we have read that. 18 play netball, 14 play hockey, 5 play neither. So beta, first thing, please remember that. Write down the information briefly with your pencil or with a pen. ठीक, हम लिख लेते हैं. So netball is how many? 18 play netball, so that there is no mistake. 14 play hockey. So hockey are how many girls? 14, okay. And 5 play neither. So this is very important. Normally, beta students, they miss this last value. So that is where they make mistakes, silly mistakes, okay. Now what is the question, beta? Find the number who play both netball and hockey. Okay, ठीक हो गया, ये हमने बेटा फाइंड करना है. Find the number who play both netball and hockey. Okay, now this is in our mind. And X the number of girls who play both netball and hockey. Okay, beta. So I've already discussed, beta, we solve these word problems in sets by the concept of Venn diagrams, right? So let's draw a Venn diagram, and we can see there are two sets being involved. One set is the girls playing netball, and the other set will be girls playing hockey. ठीक हो गया? Okay. Beta, what is the first thing you have to do? We have to see that in those Venn diagrams, which we'll draw, beta, is there intersection between the two sets? Is there overlapping between the two sets? ये हमने check करनी है. And what is the technique to do that? बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात. Total आपको given है, ठीक है? You just simply add the individual values. आप जरा add करो. Netball 18 plus hockey 14 plus 5. Add up जरा करो. What is the total? So बेटा individual को जब आपने add up किया, so this is 37. इसमें कोई doubt? But the total girls in the class are 30. So बेटा ये जो individual हमने sets के numbers को add किया, this is exceeding the total. Clarity, this is exceeding the total number. So that is how we pick that there is overlapping, there will be overlapping between the sets. There will be some girls playing both the sports. Clarity beta, that is how you pick there is intersection between the sets. ये बेटा एक common concept है which we'll apply in almost every question. ठीक है, just keep this point in mind. चलो, now let's quickly draw a Venn diagram. It's hardly a 2 minutes question. ठीक है बेटा, let's draw a Venn diagram because we are dealing with two sets. Let's draw the two sets, right beta? चलो, let's label them. One set is the netball, the other set the girls who play hockey. ठीक? Okay beta. Once you've drawn the Venn diagram, we have figured out that there will be overlapping between the sets, and we have drawn that region as well. ठीक है बेटा? Now, the most important point बेटा, values आपने कैसे fill करनी है? ठीक? Remember that you always start from the intersection of two sets, right? Or if there are three sets, you start from the intersection of three sets. ठीक है? I'll just please note this down. Very important point, right? You start from the intersection of two sets. Please remember that. ठीक है बेटा? You always start plugging in the information from the intersection
of two sets. ठीक है बेटा, that is the area you have to look in the first place. चलो, so intersection of two sets we have already discussed that. अच्छा जी, एग्जामिनर ने क्या कहा है? X the number of girls who play both netball and hockey, right बेटा? So because we don't know how many students play both the sports, बेटा we just write X here, the unknown, because we don't know the common girls playing both the sports. ये X हो गया. इसमें कोई डाउट किसी को? Clarity, because the it's very clearly written in the question as well. और अगर बेटा ये ना भी given होता, तो because it's unknown, we don't know the number who play both the sports, you just write X. Clarity? चलो, अब values plug in करो. So netball total, how many students play netball? 18, right बेटा? The total girls 18. ठीक, total netball के 18 है. So if I say how many girls who play only netball, इसमें आप ये exclude कर दो जो students who are playing both the sports. तो आप कहेंगे सर 18 play netball, so exclude the girls who play both the games. इसमें netball भी आ जाएगा and hockey वाली भी आ जाएंगी, right? Only netball का मतलब है you exclude the girls who take both sports. So 18 minus X, बड़े ध्यान से आपने अंडरस्टैंड करना है. So ये बेटा जो है, this side shows only netball. Only netball. इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक हो गया? तो only netball के कितने आ गए? 18 minus X. You exclude the common number. ठीक है? जो इसका इंटरसेक्शन है, you exclude this number. Okay, similarly only hockey, जरा मुझे बताओ, girls who play only hockey. Very simple concept. बेटा हॉकी के कितने स्टूडेंट्स हैं? 14. ठीक है, ओनली हॉकी कितने हो जाएंगे? वेरी कॉमन क्वेश्चन. आप कहेंगे सर ऑब्वियसली यू जस्ट एक्सक्लूड द प्लेयर्स हु प्ले बोथ द गेम्स, तो माइनस एक्स. इसमें कोई डाउट? चलो, सो ये बेटा 14 माइनस एक्स, ये आ गया ओनली हॉकी. इसमें कोई डाउट किसी को? राइट, बिकॉज जो मिडिल वाला है, those girls who are playing taking both the sports. ठीक है, so only netball, X shows the girls who play both the sports because वो overlapping region है, right, intersection है. और बेटा only hockey is obviously hockey में से आप intersection minus कर दें तो only hockey के players आ गए. There is another information, ये जरा देखो ध्यान से. Girls who play neither of the two sports, very important. ये नॉर्मली स्टूडेंट्स बेटा मिस कर देते हैं. 5, यू जस्ट राइट आउटसाइड दीज टू सेट्स, बिकॉज ना तो ये हॉकी खेलते हैं बेटा, ना नीदर दे टेक नेटबॉल, बट ऑब्वियसली दे विल बी प्लेस्ड इन द यूनिवर्सल सेट बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ दैट क्लास. इसमें कोई डाउट? अच्छा, नाउ व्हाट इज द टेक्निक नाउ टू सॉल्व दिस? हाउ टू फाइंड एक्स? बिकॉज ये हमने फाइंड करना है. इफ यू रीड द क्वेश्चन, फाइंड द नंबर who play both netball and hockey. So we have to find the number of students. Beta, those take both the games. So हमने ये intersection find करनी है basically. X find करना है, right? So how do you solve that? Beta, remember that. Individual sets को add करके you simply put it equal to the total. ये याद रखना. Individual sets के numbers को add करके you simply put it equal to the total number. That is the technique. चलो इंडिविजुअल को ऐड करते हैं. ओनली नेटबॉल जरा मुझे बताओ. राइट, ओनली नेटबॉल लिख लिया आपने. प्लस स्टूडेंट्स हु टेक बोथ द स्पोर्ट्स. अब इंटरसेक्शन पे आ जाओ. ठीक, इसको नहीं मिस करना. एक्स प्लस, आगे आ जाओ. ओनली हॉकी इस सेट पे आ जाओ. दैट इज 14 माइनस एक्स. राइट, ओनली नेटबॉल लिख लिया. स्टूडेंट्स हु टेक बोथ द स्पोर्ट्स, जो कि दोनों में कॉमन है. ओनली हॉकी लिख लिया. प्लस यू कैन नॉट फॉरगेट बेटा स्टूडेंट्स हु डू नॉट टेक पार्ट इन आइदर ऑफ द टू स्पोर्ट्स. ठीक, ये टोटल स्टूडेंट्स हैं इन द क्लास. इसमें कोई डाउट? पुट इट इक्वल टू 30, बिकॉज कितने हैं जी? इनिशियली देर आर 30 गर्ल्स इन अ क्लास. एनी कंफ्यूजन? चलो बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं. माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस, वेरी सिंपल लीनियर इक्वेशन, ग्रेड 8-9 के लेवल की. बाकी बेटा ऐड कर लेते हैं. सो व्हाट इज 18 प्लस 14 प्लस 5?
ये बेटा बन गया 37 माइनस एक्स इज इक्वल टू 30, राइट? सो 30 को इक्वेशन के इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, राइट? वी ब्रिंग इट ऑन दिस साइड ऑफ द इक्वेशन, और x को इक्वेशन के उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो इधर सब्ट्रैक्ट और उधर जाके ऐड हो जाएगा. सो बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 37 माइनस 30 इज 7. x की वैल्यू बेटा 7 आ गई. तो हमने x को क्या डिफाइन किया था? हमने बेटा x को डिफाइन किया था द नंबर ऑफ गर्ल्स who play both netball and hockey, right? The common of the two sets. ये बेटा हमने x को डिफाइन किया था. इसमें कोई डाउट किसी को? जी बेटा, any questions? That is how you find the common area, or you can say the common number of girls in both the sets. Standard beta concept, right? So it was a very simple question. Obviously beta discussion, once you have a good discussion, you get a concept ki okay, how to tackle these questions. ठीक है? Let's take a look at another question. Okay beta, let's take a look at this question. ठीक हो गया? So in the Venn diagram, beta number of elements in A. ठीक? बेटा ये जो n of A लिखा होता है, right? So this n means number of elements. That could be, number of students, that could be number of employees, whatever the question is all about. ठीक? ये that means number. तो number of elements in set A. ठीक? This is the number. ठीक है? N stands for number. Clarity बेटा? इसमें कोई doubt? So again, बेटा we need to understand the language. The reason I am putting in all this time बेटा in explaining and in discussions कि एक दफा if you do like any chapter, in the start of any chapter, if you do like 3-4 good questions, so you get the language, you get the basic understanding in that particular topic, right beta? Okay, what type of questions, what type of language comes in this chapter, that is important. Okay, so beta in the Venn diagram, number of elements in set A is 10. Okay, ये beta हमें clearly नजर आ रहा है. It's not a universal set, so ये left outs नहीं होंगे. Remember that. So number of elements in set A, complete set A, इसका मतलब इसमें intersection भी आ गई. Clarity? Number of elements in B is 13, set B. तो number of elements in set B is 13, right? Total. तो इसमें intersection भी आ गया. Complete set B, right बेटा? ठीक है? Complete set B का मतलब है this. Complete set B का मतलब है this. ठीक है? This also includes the intersection. इसमें कोई डाउट? ठीक? क्लैरिटी? चलो, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B is X. So this means common of the two sets is X. और ऑलरेडी बेटा that is given to us. ठीक है? A इंटरसेक्शन B ऑलरेडी बेटा हमने प्रीवियस वीडियो में बड़ी डिटेल में डिस्कशन किया है. इंटरसेक्शन मींस कॉमन, और overlapping region या overlapping area, right? So overlapping that means common in both the sets. ठीक हो गया? common in both the sets. इसमें कोई डाउट बेटा? क्लैरिटी? चलो, number of elements in A union B is 18, right? So that means, what do you mean by union? If you add the two sets, right? So this shows that the total number of elements is 18. इसमें कोई डाउट बेटा? ठीक है? ये बेटा A union B is what? That means simply add the two sets. Simply combine the two sets. ठीक है? So A union B आपको number 18 given है. This shows that the total number of elements in the two sets is 18. Clarity बेटा? इसमें कोई डाउट? ठीक हो गया? That is how you read the information first. You make sense out of it. ठीक? Then it's 1 + 1. आगे बस आपने बेटा read करना है and you'll write the answers. चलो, let's read the question. It says बेटा write in terms of X. ठीक? The number of elements in A but not in B. इसका क्या मतलब है? हमने ऑलरेडी बेटा पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है. सो A पार्ट में बेटा वो कह रहा है you just have to give the elements that are in A, ये जो मैं शेड कर रहा हूं, but not in B, because complete A में से B का पार्ट नहीं आना चाहिए, but not in B.
दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बेटा इसका मतलब होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ओनली, जस्ट सेकेंड बेटा, इसका मतलब होता है ओनली एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, या जिसको हम कहते हैं ओनली ए, ओनली ए, ओनली एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सो ओनली मीन्स एक्सक्लूडिंग द कॉमन एलिमेंट्स, एक्सक्लूडिंग द ओवरलैपिंग एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन को एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। सो ओनली ए में बेटा कितने स्टूडेंट्स आ गए? 10 आपके टोटल हैं सेट ए में। सो बेटा 10 माइनस एक्स, अभी हमने लास्ट बेटा क्वेश्चन में भी बड़ी थॉरो डिस्कशन की है। 10 एलिमेंट्स है बेटा कंप्लीट सेट ए में, यू जस्ट एक्सक्लूड द कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है, इंटरसेक्शन को एक्सक्लूड कर दो, तो ओनली सेट ए में कितने बच गए? 10 माइनस एक्स। इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक। सो दिस मीन्स ओनली ए, रिमेंबर दैट। ये लैंग्वेज ही इसमें बेटा इट क्रिएट्स ट्रबल। सो इसमें लैंग्वेज ही को हमने अंडरस्टैंड करना है। चलो जरा बी पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। इंशाल्लाह वंस यू डू दीज 2-3 क्वेश्चंस, इट वुड बी 1 + 1 फॉर यू। राइट इन टर्म्स ऑफ एक्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी बट नॉट इन ए। क्या मतलब हुआ इसका, जरा मुझे बताओ। इन बी बट नॉट इन ए, ठीक है। सो बिकॉज जो ओवरलैपिंग रीजन है वो ए में भी है। सो दिस मीन्स बेटा वंस अगेन ओनली बी की बात हो रही है, ओनली बी, ओनली बी। ए का कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए, बिकॉज जो कॉमन रीजन है, जो इंटरसेक्शन है, वो ए में भी आ रही, बिकॉज दैट इज कॉमन इन बोथ द सेट्स। क्लैरिटी बेटा, लैंग्वेज। राइट इन टर्म्स ऑफ एक्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी बट नॉट इन ए। सो सिंपली एक्सक्लूड द इंटरसेक्शन। सो बेटा बी, टोटल बी के कितने? 13। सो 13 माइनस एक्स, ये ओनली बी के बेटा एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसमें कोई डाउट? क्लैरिटी? ठीक हो गया। चलो सी पार्ट। Add together the number of elements in the 3 parts of the diagram to obtain this equation. Very simple बेटा, ये तो ऑलरेडी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है कि आप टोटल के इक्वल पुट कर देते हैं। सो दिस इज योर टोटल, ठीक है, 18 इज योर टोटल। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ये बेटा आपका टोटल है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब है यू जस्ट सिंपली कंबाइन द 2 सेट्स। एन स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक। तो टोटल आपके पास कितना है? 18। इसमें कोई डाउट किसी को? हां जी, क्लैरिटी बेटा, इसमें कोई डाउट? चलो सिंपली ऐड ऑल द, सो ओनली ए में कितने? 10 माइनस एक्स, टर्न बाय टर्न, ठीक। इसके बाद यू डन दिस, ठीक है। अब अगले पे आ जाओ। इंटरसेक्शन में कितने जी? प्लस एक्स एलिमेंट्स, यू डन विद इंटरसेक्शन। ओनली बी में कितने? अभी हमने लिखा है ओनली बी में कितने बेटा? 13 माइनस एक्स, ठीक है। इंडिविजुअल को ऐड करके, लेफ्ट आउट्स कोई भी नहीं है, इट्स नॉट अ यूनिवर्सल सेट बेटा। लेफ्ट आउट जरूर चेक किया करो, विच आर नीदर इन द 2 सेट्स, बिकॉज इट्स नॉट अ यूनिवर्सल सेट, तो उसमें एज सच कुछ आपको लेफ्ट आउट्स नहीं गिवन, ठीक। सो ओनली ए, दिस एक्स इज द कॉमन इन बोथ द सेट्स, ये बेटा आ गया which is only b, put it equal to 18। देखो यही इक्वेशन बन रही है जो एग्जामिनर ने हमसे पूछी है बेटा। 10 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू 18। बट नाउ यू हैव अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट कि ये कैसे डिराइव हुई, हाउ वी रोट दिस इक्वेशन। क्लैरिटी बेटा? चलो लास्ट पार्ट, आई होप दिस इज क्लियर। हेंस फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ ए एंड बी। बेटा प्लीज रिमेंबर दैट ये जो बोथ का वर्ड आ जाता है, दिस स्टैंड्स फॉर द इंटरसेक्शन, कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ द सेट्स, ठीक है। ठीक हो गया ना? फाइंड, हेंस फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ ए एंड बी। सो ए और बी का मतलब ये हुआ कि बेटा आपने सिंपल बेटा कॉमन एलिमेंट्स लिख देने। चलो तो x की वैल्यू बेटा हम सॉल्व कर लेते हैं इसके लिए, बिकॉज x इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इन बोथ ए एंड बी। ऐसे ही x कॉमन है दोनों में। चलो सिंपली सॉल्व कर लो इक्वेशन को। सो ये बेटा वील राइट इट अगेन एक दफा। इट्स सो सिंपल
ग्रेड 7-8 की बेसिक मैथ्स है। ये बेटा जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, ठीक। सो व्हाट इज 10 प्लस 13 बेटा 23 माइनस एक्स इज इक्वल टू 18। चलो इक्वेशन को इक्वेशन के इसको इस तरफ ले आओ, 18 को माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स उधर जाके प्लस एक्स हो जाएगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज 23 माइनस 18, 5। देयर आर 5 एलिमेंट्स beta which are common in both A and B, or you can say the number of elements in both A and B is 5. Clarity beta? I hope it was a simple question, but once again it's all about understanding the language. Clarity? Okay beta, let's read this question. Draw 6 diagrams, okay, similar to figure 1 and shade the following sets. Right beta? Again, shading is a very important part of beta this chapter, और बड़े common questions आपके exams में आते हैं, right? Almost in every paper beta there is a question of shading. So बड़ी इसमें clarity होनी चाहिए। Okay बेटा जरा shade करते हैं। First one जरा A part देखते हैं, A intersection B। हाँ जी, so A intersection B बेटा कौन सा होगा जरा बताओ। Let's label the sets. This is A and this is B. So what do you mean by A intersection B? अब तो बेटा हमने बड़ी थॉरो डिस्कशन कर ली है। द कॉमन, द ओवरलैपिंग रीजन ऑफ द टू सेट्स, द कॉमन ऑफ द टू सेट्स, ठीक। तो ये बेटा आप रीजन शेड कर दोगे, इसमें कोई डाउट? ये रीजन होगा ओवरलैपिंग ऑफ द टू सेट्स। सो ए इंटरसेक्शन बी हम लिख देते हैं, सो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कोई डाउट? क्लैरिटी बेटा? द ओवरलैपिंग रीजन ऑफ द टू सेट्स। चलो बी जरा देखते हैं, ए यूनियन बी। सो व्हाट डू यू मीन बाय यूनियन? Simply combine the two sets, unite the two sets, ठीक है। हम लेबल कर देते दिस इज A and this is B, बेटा simply shade both the sets। ये बेटा आ गया A यूनियन B, इसमें कोई डाउट किसी को? क्लैरिटी बेटा? ओके। C जरा देखते हैं, इट इज सेइंग A कॉम्प्लीमेंट। ऑलरेडी बेटा हमने थॉरो डिस्कशन की है इन द लास्ट वीडियो, अगर बेटा किसी ने वो नहीं देखी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपका सेट्स का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा, राइट? इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक बट यू नीड डिस्कशंस। एक दफा थॉरो डिस्कशंस इफ यू गो थ्रू दैम, फिर इट्स 1+1। चलो लेट्स लेबल द सेट्स, दिस इज ए एंड दिस इज बी। सो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है एक्सेप्ट सेट ए, राइट? सो एक्सेप्ट सेट ए का क्या मतलब हुआ? आप क्या शेड करेंगे बेटा, बोलो जरा। एक्सेप्ट सेट ए का मतलब है यू विल शेड एवरीथिंग, right? You will beta shade everything except set A, ठीक। A का कोई पार्ट नहीं आना चाहिए। ये बेटा आपका आ गया, this is A complement except set A। इसमें कोई डाउट किसी को? क्लैरिटी बेटा? अब A complement का एरिया क्लियर हो गया, ठीक है। दिस इज A complement, ठीक है बेटा। या अगर इसी तरह B complement होता तो एक्सेप्ट सेट बी यू विल शेड एवरीथिंग। सो ए कॉम्प्लीमेंट जो सेट है, ठीक है, इसका रीजन बड़ा क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि दिस इज द रीजन ए कॉम्प्लीमेंट। क्लैरिटी? ठीक। आगे बेटा जरा डी पे चलते हैं। सो इट सेज बेटा हम लिख लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। लेट्स लेबल द सेट्स बेटा, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक। ए कॉम्प्लीमेंट बेटा ऑलरेडी हमने रीजन डिफाइन कर लिया है इन द प्रीवियस पार्ट। अब ये रीजन सर अपने माइंड में लाओ। इंटरसेक्शन का मतलब होता है ओवरलैपिंग एरिया विद दैट सेट। तो ए कॉम्प्लीमेंट तो हमने डिफाइन कर लिया, ये पूरा रीजन आपके माइंड में होना चाहिए। ओवरलैपिंग रीजन विद सेट बी कौन सा है? ओनली दिस पार्ट, ठीक। उस रीजन का जो ए कॉम्प्लीमेंट हमने बेटा प्रीवियस पार्ट में रीजन डिफाइन किया, एरिया डिफाइन किया, ए कॉम्प्लीमेंट। क्लैरिटी? दिस शुड बी इन योर माइंड। अब मुझे बताओ, ये जो ए कॉम्प्लीमेंट का एरिया है, ओवरलैपिंग रीजन देखो विद सेट बी, दोनों का ओवरलैपिंग रीजन कौन सा होगा? दिस वन जो मैंने शेड किया है, द कॉमन एरिया इन बोथ द सेट्स। इसमें कोई डाउट किसी को? चलो जरा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, राइट? ये ए और ये बी, ठीक। अब बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है एक्सेप्ट बी एवरीथिंग,
तो ए इंटरसेक्शन ए द ओनली रीजन जो कि ओवरलैप कर रहा है विद बी कॉम्प्लीमेंट, ए का सिर्फ ये वाला पार्ट ओवरलैप करेगा विद बी कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, ओवरलैपिंग रीजन, कॉमन रीजन इन बोथ द सेट्स। क्लैरिटी बेटा? बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक्सेप्ट बी, सो एक्सेप्ट बी मींस सब कुछ आ जाएगा। क्लैरिटी? एक्सेप्ट बी मींस आपका यूनिवर्सल सेट भी अंदर आ गया और ए का रीजन भी आ गया। इंटरसेक्शन मींस कि उस रीजन का ओवरलैपिंग विद सेट ए, तो सिर्फ ये रीजन ओवरलैप करेगा विद बी कॉम्प्लीमेंट। क्लैरिटी बेटा? ठीक हो गया। बी यूनियन ए होल कॉम्प्लीमेंट, तो बेटा रिमेंबर दैट ये जो ब्रैकेट में आता है यू ट्रीट इट एज वन सेट। ठीक? सो बी यूनियन ए ये हमने ऊपर शेड किया है, इन द सेकेंड वन बी यूनियन ए, सो यू ट्रीट इट एज वन सेट। ठीक है? तो बी यूनियन ए को हम एक वन सेट कंसिडर कर लेते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट यानी एक्सेप्ट दिस सेट। सो लेट्स से दिस वाज सेट ए, दिस वाज योर सेट ए एंड बी, राइट? सो बी यूनियन ए का मतलब एक्सेप्ट दिस सेट, तो बेटा आपका ये सारा रीजन आ जाएगा, बिकॉज बी यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट है, दैट मीन्स एक्सेप्ट दैट सेट एक्सक्लूडिंग दैट सेट, ये बेटा आ जाएगा बी यूनियन ए होल कॉम्प्लीमेंट। इसमें कोई डाउट किसी को? आई होप द शेडिंग पार्ट इज ऑल्सो वेरी क्लियर नाउ। ओके बेटा, लेट्स डिस्कस दिस नाउ अगेन। बेटा वी कैन सी सबसेट का क्वेश्चन है, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड एवरीथिंग। ठीक हो गया बेटा? ये सबसेट का वेन डायग्राम है, राइट? अ बिगर सेट विच कंटेन्स द स्मॉलर सेट। ठीक है, राइट बेटा? क्लैरिटी? अ स्मॉलर सेट विच इज अ पोर्शन विच इज अ पार्ट ऑफ द बिगर सेट। ठीक है, अगर वहां से वो जनरेट हुआ हो। क्लैरिटी बेटा? सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द सबसेट कॉन्सेप्ट इन डिटेल। चलो जरा इसकी शेडिंग क्विकली देख लेते हैं। अगेन जस्ट 1 मिनट क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन केयरफुली बेटा। ड्रॉ 4 डायग्राम्स सिमिलर टू फिगर 2, वी हैव डन दैट। शेड द फॉलोइंग सेट्स। चलो अब जरा शेडिंग देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, हम जरा लेबल भी कर लेते हैं। दिस इज सेट ए और ये वाला सेट है बी, द इनर सेट। ओके, शेड ए इंटरसेक्शन बी। ए का रीजन हमारे सामने, सेट बी का रीजन, दोनों रीजन्स जो ओवरलैप कर रहे हैं बेटा, ये होगा ए इंटरसेक्शन बी। रिमेंबर दैट। ठीक है, इट इज ऑलवेज द इनर सेट बिकॉज सबसेट का क्वेश्चन है। तो बेटा ए इंटरसेक्शन बी मींस द कॉमन एरिया ऑफ बोथ द सेट्स, जहां दोनों रीजन्स ओवरलैप कर रहे हैं। सेट ए तो कंप्लीट हो गया ना, उसमें सेट बी भी आ गया, बट विद बी जो ओवरलैप कर रहा है दैट इज ओनली दिस एरिया, ए इंटरसेक्शन बी। इसमें कोई डाउट बेटा? क्लैरिटी? चलो अगला लेबल कर देते ए एंड बी। ठीक, सो ए यूनियन बी, ये तो सबसे इजी होता है, जस्ट कंबाइन द टू सेट्स, आंखें बंद करके इसको बेटा शेड कर दो। क्लैरिटी? ये आपका आ गया ए यूनियन बी। इसमें कोई डाउट किसी को? क्लैरिटी? ओके जी, नेक्स्ट वन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेट्स फर्स्ट लेबल द सेट्स जैसे एग्जामिनर ने किए हुए। ए एंड द इनर सेट इज बी। ओके, सो बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। बी कॉम्प्लीमेंट मींस एवरीथिंग एक्सेप्ट बी। इसमें ये बेटा बाहर वाला रीजन भी आ गया। इंटरसेक्शन ए ओनली दैट रीजन विच इज कॉमन विद सेट ए, तो बेटा ये सिर्फ रीजन हो जाएगा ये वाला। आई होप अब तो हमारी बहुत प्रैक्टिस हो गई है। ठीक, सिर्फ ये वाला रीजन आएगा। क्लैरिटी बेटा? वंस अगेन, बी कॉम्प्लीमेंट मींस एक्सेप्ट बी एवरीथिंग। ये जो आउटसाइड रीजन है, ये जो आउटसाइड रीजन है बेटा, ये भी बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ठीक है, ये भी रीजन बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, एक्सेप्ट बी एवरीथिंग। ठीक, ये सारा बी कॉम्प्लीमेंट है। ये जो मैंने बी कॉम्प्लीमेंट बेटा जो मैंने ये पिंक से शेड किया, राइट? दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट, दिस सेट इज बी कॉम्प्लीमेंट। तो इंटरसेक्शन ए का बेटा मतलब है बी कॉम्प्लीमेंट का जो रीजन है, आपने एक दफा डिफाइन कर लिया, दैट पार्ट ऑफ दिस बी कॉम्प्लीमेंट रीजन विच ओवरलैप्स विद सेट ए, विच ओवरलैप्स विद सेट ए। तो वो बेटा सिर्फ कौन सा है? वो जो हमने इनिशियली डिफाइन किया था, राइट? वो ये वाला है जो हमने इनिशियली डिफाइन किया था। इसमें कोई डाउट किसी को? क्लैरिटी? ठीक है बेटा, इफ यू वांट टू राइट दिस डाउन, आप बेशक साथ लिख दो, दिस वाज ए इंटरसेक्शन बी
ये बेटा था, जस्ट सेकेंड, दिस वॉज ए इंटरसेक्शन बी, राइट। बी पार्ट हमने शेड किया था ए यूनियन बी, और सी पार्ट बेटा हमने किया बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो इंटरसेक्शन मींस कॉमन रीजन आपने लेना है, राइट। एंड द लास्ट वन बेटा इट्स वेरी सिंपल, बी यूनियन ए होल कॉम्प्लीमेंट। सो यू ट्रीट बी यूनियन ए एज वन सेट, ठीक। तो ऑलरेडी हमने ए यूनियन बी या बी यूनियन ए ऊपर बेटा हमने शेड किया हुआ है। लेट्स लेबल इट फर्स्ट ए एंड दिस इज बी। सो ए यूनियन बी एक्सेप्ट दिस एवरीथिंग। सो बेटा ये आपके पास आ जाएगा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसमें कोई डाउट बेटा? Any questions in this? Any ambiguities? Clarity? It was simple. Okay, beta. A very common question that again comes in exams. Beta, 3 sets की shading. If you pick the past papers, there are so many questions जिसमें 3 sets की shading आई हुई है, right, beta? So for me, this is again a very very important question. इसी तरह के बेटा कोई एक आध पार्ट आपको 2 मार्क्स का, 1 मार्क, 2 मार्क्स का एग्जाम में आ जाता है, राइट। सो इसको बड़े ध्यान से हमने फोकस के साथ बेटा डिस्कस करना है, राइट। ओके, ड्रॉ 11 डायग्राम्स सिमिलर टू फिगर 4 एंड शेड द फॉलोइंग सेट्स। ओके, लेट्स शेड दिस। ए पार्ट बेटा जरा देखते हैं, व्हाट इज ए पार्ट। लिखते भी जाते हैं ए इंटरसेक्शन बी। लाइक फर्स्ट लेट्स लेबल, दिस इज ए, दिस इज सेट बी, दिस इज सेट सी। ओके बेटा, इंटरसेक्शन हमने क्या डिस्कस किया है? जस्ट फोकस ऑन द 2 सेट्स, फॉरगेट अबाउट सी। ए और बी का कॉमन रीजन कौन सा है? दिस इज द कॉमन रीजन ऑफ ए एंड बी। ये होगी ए इंटरसेक्शन बी। इसमें कोई डाउट किसी को? इट वॉज सो इजी। चलो बी पार्ट पे आ जाते हैं। ए यूनियन सी, राइट, लेबल कर लेते हैं ए बी एंड सी। यूनियन को बेटा शेड करना सबसे इजी है, कंप्लीट सेट ए, राइट, एंड कंप्लीट सेट सी। इट वॉज सो सिंपल, फॉरगेट अबाउट बी, ठीक है। ए यूनियन सी का मतलब कंप्लीट ए एंड कंप्लीट सी। यूनियन को शेड करना सबसे इजी है। क्लैरिटी? जरा सी पार्ट देख लेते हैं। इट सेज ए का इंटरसेक्शन है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। ऑलरेडी बेटा मैंने आपसे कई दफा ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कि इफ देर इज अ सेट इन ब्रैकेट, यू ट्रीट इट एज वन सेट। हम बी इंटरसेक्शन सी को वी ट्रीट इट एज वन सेट, राइट। लेबल कर लेते हैं ए बी एंड सी, राइट। सो व्हाट इज बी इंटरसेक्शन सी? फर्स्ट ऑफ ऑल जरा बी इंटरसेक्शन सी शेड करते हैं फॉर अ मोमेंट, आपको रीजन एक दफा समझ आ जाए। ये बेटा आपके पास है बी इंटरसेक्शन सी, इसमें कोई डाउट? इसका ओवरलैपिंग रीजन विद सेट ए मुझे बताओ, इसका ओवरलैपिंग रीजन, राइट। ये आपने बी इंटरसेक्शन सी सिर्फ अभी शेड किया है सो दैट एक रीजन, एक एरिया आपके माइंड में आ जाए, राइट। अब इस सेट की बेटा हमने इंटरसेक्शन लेनी है विद सेट ए, ठीक है, विद सेट ए। क्लैरिटी? दिस इज बी इंटरसेक्शन सी। चलो सेट ए के साथ, पूरा सेट ए के साथ इसका कौन सा रीजन ओवरलैप कर रहा है? हां जी, कौन सा रीजन बेटा ओवरलैप कर रहा है? ओनली दिस रीजन। इसमें कोई डाउट किसी? क्लैरिटी बेटा? कोई चीज मिसअंडरस्टूड, कोई एम्बिग्विटी? ठीक हो गया। इसलिए बेटा इंटरसेक्शन में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज कॉमन रीजन होता है। पहले सेट्स को डिफाइन कर लिया करो कि व्हाट आर द 2 सेट्स। जैसे हमने बी इंटरसेक्शन सी को पहले डिफाइन कर लिया, ओके दिस इज बी इंटरसेक्शन सी, क्लैरिटी आ गई। अब हमने उसका ओवरलैपिंग सिर्फ पार्ट लेना है विद द अदर सेट। ठीक हो गया बेटा? चलो आगे चलते हैं। लेट्स डू द डी पार्ट। ठीक, इट सेज बेटा डी पार्ट में ए यूनियन बी, ठीक है, और इसका इंटरसेक्शन लेना है विद सेट सी। तो आई ऑलवेज टेल यू टू स्टार्ट फ्रॉम द, ये जो कंप्लीट एक डबल सेट मार्क हुआ होता है, राइट। सो यू ट्रीट ए यूनियन बी एज वन सेट। हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ए यूनियन बी, राइट बेटा। लेबल कर लेते हैं, दिस इज ए बी एंड सी, राइट। सो रीजन जो बेटा आपके माइंड में आना चाहिए, व्हाट इज ए यूनियन बी? ये सारा रीजन है जो आपके माइंड में आना चाहिए। इसमें कोई डाउट बेटा? दिस इज ए यूनियन बी, ए एंड बी कंबाइंड। क्लैरिटी?
दिस इज ए यूनियन बी। अब इसका बेटा हमने सिर्फ इंटरसेक्शन लेना है विद सी। तो मुझे बताओ सिर्फ सी के साथ कौन सा रीजन ओवरलैप कर रहा है? ए यूनियन बी आपने शेड कर लिया। सो यू हैव एन एरिया इन योर माइंड, यू ट्रीट इट एज वन सेट। ये जो बेटा ब्रैकेट्स में लिखे होते हैं समटाइम्स दो सेट, यू ट्रीट इट एज वन सेट। ठीक है, ब्रैकेट्स को हमने एज वन सेट ट्रीट करना है। क्लैरिटी? इसका बेटा आपने इंटरसेक्शन लेना है इस एरिया का जो ओवरलैप कर रहा है विद सी। इंटरसेक्शन का मतलब ओवरलैपिंग रीजन विद सी। चलो इसको मैं रेस कर देता हूं। नाउ दैट यू हैव एन एरिया इन योर माइंड, तो ओवरलैपिंग रीजन बेटा सिर्फ कौन सा होगा? हां जी, ओवरलैपिंग रीजन बेटा सिर्फ कौन सा होगा, मुझे कौन बताएगा? दिस विल बी द ओनली ओवरलैपिंग रीजन। ये जो मैं शेड कर रहा हूं रेड से, ये आपका बेटा होगा ओवरलैपिंग रीजन। ये पिंक से मैंने शेड किया। ए यूनियन बी का ओवरलैपिंग रीजन विद सेट सी। क्लैरिटी बेटा? इसमें कोई डाउट? ठीक, चलो ई पार्ट जरा देखते हैं। लेट्स लुक एट ई पार्ट। ओके बेटा, क्या है जी? बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। चलो ए बी सी सेट मार्क कर देते हैं। वेरी इजी शेडिंग, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। चलो ए यूनियन सी बेटा कौन सा सेट है, जरा शेड करते हैं। ए यूनियन सी ए कंप्लीट, ठीक हो गया। और बेटा सी भी कंप्लीट। ठीक, यूनियन तो बहुत सिंपल है शेड करना। यू जस्ट सिंपली एड द टू सेट्स। ये ए यूनियन सी आ गया, इसमें कोई डाउट? ठीक, यू ऑलवेज स्टार्ट बेटा जो डबल सेट गिवन होता है ब्रैकेट में, यू ट्रीट इट एज वन सेट। ठीक है, यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ब्रैकेट्स। तो ए यूनियन सी को आपने वन सेट ट्रीट कर लिया। इसका इंटरसेक्शन लेना है विद सेट बी। दैट मींस इस रीजन का ओवरलैपिंग विद सेट बी कहां हो रही है? हां जी, कौन मुझे बताएगा बेटा ओवरलैपिंग कहां हो रही है? बोलो शाबाश। दिस इज द ओनली ओवरलैपिंग रीजन, ये जो हम शेड कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो शेड कर दो बेटा। सो दिस इज पार्ट ऑफ ए यूनियन सी। क्लैरिटी? और ये ओवरलैपिंग है विद सेट बी। इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक, आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। चलो अगला बेटा डिस्कस करते हैं। एफ जरा देख लेते हैं। बड़ा सिंपल लग रहा है एफ पार्ट भी। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये तो ऑलरेडी हमने बहुत दफा डिस्कस किया हुआ बेटा। बी कॉम्प्लीमेंट मींस एक्सेप्ट बी एवरीथिंग। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट मींस एक्सेप्ट बी एवरीथिंग। अब आपके माइंड में बेटा आना चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट? एक्सेप्ट बी एवरीथिंग। ठीक है, बी का कोई पार्ट नहीं आएगा। ठीक, ये बेटा आपने शेड कर दिया बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक, दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट। इसका इंटरसेक्शन लेना है सिर्फ सेट ए के साथ। ठीक, बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। इसका इंटरसेक्शन लेना है विद सेट ए के साथ। तो बी में से कुछ नहीं आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट में से कुछ नहीं आएगा, और जो रिमेनिंग सेट ए है बेटा वो आ जाएगा। ठीक है, ये इसको मैं रेस कर देता हूं सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। जस्ट अ सेकेंड, इसको बेटा हम रेस कर लेते हैं। चलो, तो बेटा सिर्फ कौन सा रीजन आ जाएगा? जस्ट दिस वन। इसमें कोई डाउट किसी? ठीक हो गया ना बेटा? ये बड़ी थॉरो ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर ली है। सो कॉम्प्लीमेंट आ जाए बेटा, पहले वो रीजन डिफाइन किया करो अपने माइंड में कि व्हाट इज बी कॉम्प्लीमेंट। वो एरिया आ गया। अब देख लो ओवरलैपिंग विद द अदर सेट क्या होता है? इट इज यूजुअली दैट सेट। ठीक है, बी में से कोई पार्ट नहीं आएगा। ठीक, एंड ओवरलैपिंग विद ए, ये जो हमने शेड किया। क्लैरिटी? चलो एफ के बाद बेटा जरा जी देख लेते हैं। जी भी बड़ा सिंपल लग रहा है। अच्छा जी, व्हाट इज जी लिख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट। चलो वेरी इंटरेस्टिंग वन, जरा देखते हैं इसको जरा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? पहले हम लेबल कर लेते हैं बेटा सेट्स को। दिस इज ए बी एंड सी, राइट? सो बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा, ये जरा मुझे बताओ। बी यूनियन सी को छोड़ के एक्सेप्ट दैट बेटा ये सारा इसका कॉम्प्लीमेंट होगा।
जस्ट लीव बी यूनियन सी, बी और सी को छोड़ दो, ठीक है। लेट्स शेड फर्स्ट बी यूनियन सी होल, बी और सी में से कुछ नहीं आएगा, राइट। ये हम जरा शेड कर लेते हैं सो दैट देर इज नो कंफ्यूजन, ठीक है जी। ये बेटा आ गया बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसमें कोई डाउट किसी को, राइट। यू ट्रीट इट एज वन सेट, ऑलरेडी बेटा मल्टीपल टाइम्स हमने डिस्कस किया है। यू स्टार्ट फ्रॉम द डबल सेट जो ब्रैकेट में होता है, सो बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट ये जो है, दिस एरिया शुड बी इन योर माइंड, ये बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट है। अब मुझे बताओ बेटा इस एरिया की ओवरलैपिंग विद सेट ए, ये सिर्फ ए का जो पार्ट पिंक में शेड हुआ है, ठीक है, ए का पार्ट जो सिर्फ पिंक में शेड हो, इसको रेस कर देते हैं नाउ दैट वी नो द कॉन्सेप्ट, ठीक। सो सिर्फ बेटा इसका ये जो रीजन शेड हुआ है, दिस वन विद ए, ये सिर्फ शेड होगा। दिस इज बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद ए। क्लैरिटी बेटा, आई होप दिस वाज प्रीटी सिंपल। आगे देख लेते हैं। अच्छा जी, एच पार्ट जरा देखते हैं, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। क्या है जी एच पार्ट? ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक। लेबल कर लेते हैं ए बी सी को, ए बी सी। अब दोनों सेट्स को बेटा जरा माइंड में लाओ, बिकॉज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स है। ए यूनियन सी कंप्लीट ए कंप्लीट सी, इंटरसेक्शन विद बी इंटरसेक्शन सी, ये बेटा बी इंटरसेक्शन सी है, ठीक। और अगर हम ब्लू से शेड कर दें बेटा, ब्लू से शेड कर देते हैं ए यूनियन सी को, ये सारा ए यूनियन सी आ गया, दिस इज ए यूनियन सी, पूरा कंप्लीट ए एंड कंप्लीट सी, ठीक। ये पूरा ए यूनियन सी आ गया, और बी इंटरसेक्शन सी ऑलरेडी हमने शेड। सो इसमें ओवरलैपिंग रीजन बेटा कौन सा है? वो देखो पिंक ओवरलैप कर रहे हैं ना ब्लू के साथ, क्लैरिटी। सो दोनों बेटा फर्स्ट रीजन शुड बी डिफाइंड, ए यूनियन सी ये जो हमने पिंक में शेड किया है, बी इंटरसेक्शन सी जो पहले हमने रीजन डिफाइन किया था। अब इंटरसेक्शन मींस कॉमन एरिया ऑफ बोथ द सेट्स, राइट। सो बेटा कॉमन एरिया कौन सा आ जाएगा? वो जो हमने पिंक में शेड किया था, वो सारा का सारा इन दोनों सेट्स का कॉमन रीजन है। सो बेटा इसको हम रेस कर देते हैं, जस्ट अ सेकेंड। सो ये बेटा आपके पास जो हमने पिंक में शेड किया था, सॉरी ये जो हमने बेटा पिंक में शेड किया था, ये आपके पास आ जाएगा, एक सेकेंड, दिस वाज सेट सी, ठीक। सो बेटा ये आपके पास रीजन आ जाएगा, दिस इज ए यूनियन सी, और इसकी ओवरलैपिंग है विद बी इंटरसेक्शन सी। ये दोनों सेट्स का ओवरलैपिंग रीजन है, इसमें कोई डाउट किसी को बेटा? क्लियर? ओ सो बेटा दिस वाज नॉट एच पार्ट, इन फैक्ट वी हैव डन के पार्ट, ठीक है। इसको जरा करेक्ट कर लो, ऑलरेडी हमने वी हैव रिटन एवरीथिंग, सो दिस वाज के पार्ट, राइट। ए यूनियन सी, ठीक है बेटा, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सो दिस वाज के पार्ट, राइट। क्लैरिटी? एच पार्ट देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा ये सारे क्वेश्चंस करने, बिकॉज दे आर सो क्रूशल, अदरवाइज आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होगा। इनिशियल क्वेश्चंस ऑफ एनी चैप्टर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एक दफा डिस्कशंस कर लो, फिर द कॉन्सेप्ट यू नो इट बिकम्स रियली गुड, स्ट्रॉन्गर इन योर माइंड। अच्छा जी, एच पार्ट जरा देखते हैं, बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए, चलो लेबल कर देते सेट्स ए बी एंड सी, ठीक। सो बेटा व्हाट इज बी यूनियन सी? ये जरा हम शेड कर लेते हैं, ऑब्वियसली बी कंप्लीट, राइट बेटा, एंड सी कंप्लीट। फर्स्ट मार्क द रीजन, यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द, ये जो डबल सेट मार्क होता है इन द ब्रैकेट, ठीक है। क्लैरिटी बेटा? चलो बी यूनियन सी आपने मार्क कर लिया, इसका ओवरलैपिंग रीजन विद सेट ए, क्लैरिटी। सो ओवरलैपिंग रीजन बेटा बड़ा क्लियरली हमें नजर आ रहा है, दिस विल बी द ओवरलैपिंग रीजन, इसमें कोई डाउट किसी को? क्लैरिटी? ठीक है, दोनों रीजन्स मार्क कर लिए। चलो आई विल रेज दिस ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, जस्ट अ सेकेंड। चलो
अब बेटा आप सिंपली बस इसको शेड कर दो एंड दैट्स इट। ठीक है बेटा, ये आपके पास रीजन आ गया। बी यूनियन सी, ऑब्वियसली दोनों सेट्स आएंगे। दिस इज द ओनली रीजन जो इंटरसेक्ट कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है विद ए। इसमें कोई डाउट किसी को? क्लैरिटी बेटा? ओके बेटा, जरा अब देखते हैं आई पार्ट। आई पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो दिस इज सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन और ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी, राइट? सो आई पार्ट इज जी, व्हाट इज आई पार्ट? सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, राइट बेटा? चलो लेबल कर लेते सेट ए बी एंड सी। सो ए इंटरसेक्शन बी तो बेटा बड़ा ऑब्वियस है। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? ये सारा रीजन, इसमें कोई डाउट? और सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है एक्सेप्ट सी एवरीथिंग। तो इंटरसेक्शन को शेड करना बड़ा सिंपल है। सी कॉम्प्लीमेंट मींस एक्सेप्ट सी एवरीथिंग। तो इंटरसेक्शन में बेटा आप सिर्फ ओवरलैपिंग रीजन लेंगे। सो सिर्फ ये वाला रीजन जो मैं ब्लू से शेड कर रहा हूं, सिर्फ ये वाला रीजन ओवरलैप करेगा विद ए इंटरसेक्शन बी। सी कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियसली ये बहुत वाइडर एरिया आएगा, एक्सेप्ट सी एवरीथिंग इनसाइड द यूनिवर्सल सेट। बट हमने सिर्फ इंटरसेक्शन लेना है विद ए इंटरसेक्शन बी। तो दैट इज वाई बेटा हमने ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी डिस्कस की है। यू स्टार्ट फ्रॉम द ब्रैकेट्स, ठीक है? यू ट्रीट इट एज वन सेट। तो ए इंटरसेक्शन बी आपने पहले माइंड में मार्क कर लिया, राइट बेटा? अब हमने इसकी ओवरलैपिंग लेनी है विद सी कॉम्प्लीमेंट। तो वो सिर्फ वो रीजन है जो मैंने बाद में ब्लू से शेड किया, राइट? अब इसको हम प्रॉपर शेड कर लेते हैं। लेट मी जस्ट सिंपली इरेज दिस। ये बेटा आपका रीजन आएगा, ये जो मैंने रेड से शेड किया। दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है? और इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। इसमें कोई डाउट बेटा? क्लैरिटी? चलो लास्ट पार्ट जरा देख लेते हैं, जे पार्ट, बिकॉज के ऑलरेडी हमने कर लिया। लेट्स डू जे पार्ट, राइट? लेबल कर लेते हैं ए बी सी। अच्छा जी, व्हाट इज जे पार्ट? अगेन अ वेरी सिंपल वन, ए यूनियन सी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी एंड यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट बेटा? क्लैरिटी? ओके जी, ए यूनियन सी तो बहुत सिंपल है बिकॉज सारा क्वेश्चन ही यूनियन का है। सो नथिंग टू वरी अबाउट, आप सिंपल शेड कर दो। सो ए यूनियन सी तो बेटा ये हो गया कंप्लीट ए कंप्लीट सी। इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है जी, ए यूनियन सी आ गया बेटा, बिकॉज यूनियन में देर इज एब्सोल्युटली नो वरीज, पूरे सेट्स आते हैं। तो आपने ए यूनियन सी को, इस सेट को हमने पहले शेड कर लिया, ए यूनियन सी। क्लैरिटी? बी कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट बी एवरीथिंग। सो एक्सेप्ट बी, बिकॉज दोनों सेट्स आएंगे कंप्लीट, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एक्सेप्ट बी। तो बी को छोड़ के बेटा सारा कुछ, ये बेटा आपके पास रीजन आ जाएगा एंड यू जस्ट सिंपली आप इसको शेड कर देंगे, ठीक? दिस इज योर ए यूनियन सी। दोनों सेट्स आ गए, यू ट्रीट इट इज वन सेट। बेटा इसमें हम बस सिंपली दोनों सेट्स को कंबाइन कर देते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट। क्लैरिटी? ठीक है, ए यूनियन सी कंप्लीट आएगा, उसमें कुछ मिस नहीं होगा। आई होप दिस वॉज एब्सोल्युटली क्लियर। ये बेटा शेडिंग आपकी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कस हो गई है। इफ यू जस्ट गो थ्रू दिस, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? ओके बेटा, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? अच्छा जी बेटा, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इट सेज बेटा इफ एक्स इज अ सेट एंड ऑब्वियसली इट हैज एलिमेंट्स 1 2 3, और बेटा डॉट 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 का मतलब है यही पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है टिल 10, राइट? सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट? सो ये सेट एक्स हो गया। देन यू हैव अ सेट वाई विच हैज एलिमेंट्स 2 4 6, यही पैटर्न बेटा कंटिन्यू होगा। डॉट 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 मींस द सेम पैटर्न कंटिन्यूज। सो 2 4 6, नेक्स्ट एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 8 10 12 एंड सो ऑन टिल 20। ठीक हो गया बेटा? क्लैरिटी? ओके, द रीजन फॉर दिस क्वेश्चन बेटा, ये जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, इज दिस द थर्ड लैंग्वेज? ठीक है, ये जो सेट जेड को इसने मैथमेटिकल सेट नोटेशन में एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको बेटा ये
It's a very common question that comes in exam. ठीक है? So normally students they miss out on this small understanding part, और फिर they have a lot of confusions or कि जी there was a difficulty in a sets question. So बेटा इसको जरा देखते हैं कि ये एग्जामिनर ने क्या डिफाइन किया हुआ है. ओके, सो Z इज अगेन अ सेट. वी कैन सी द कर्ली ब्रैकेट्स. बेटा आगे एक एलिमेंट उसने लिखा हुआ है X. ठीक है, जो सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं. बेटा ये जो आगे कोलन का साइन है इसको हम रीड करते हैं सच दैट. ठीक, इसको कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन. सो बेटा दिस एक्सप्लेन्स ये जो उसने एलिमेंट X को उसने लिखा है, बेटा इसकी आगे डेफिनेशन है. सो सच दैट का मतलब है इसने इसको एक्सप्लेन किया है कि व्हाट आर दीज एलिमेंट्स X इन दिस सेट. सिंपल इज दैट. रादर देन वो सेट Z को इन सिंपल टर्म्स लिख सकता था, बिकॉज बेटा इनइक्वालिटीज में हमने ये रीड करना, वी हैव लर्न दैट कि 15 भी इंक्लूसिव है, 25 भी इंक्लूसिव है. सो X की वैल्यूज है 15 टिल 25 इंक्लूसिव. सो Z सेट क्या होगा? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 and beta 25, right? So instead of writing like this, जैसे उसने बेटा set X और set Y को explain किया है, बेटा the examiner has written this in the form of a set notation using this colon sign. ठीक है, तो हम इसको बेटा कैसे रीड करेंगे? Whenever this language comes in, हम रीड करेंगे Z as elements या whatever that set is, जो भी उसने अल्फाबेट लिखा है. So we have to look for the explanation. Okay, Z has elements X. ठीक है, it has different elements in that set X. But what are those elements? ये जो बेटा कोलन के बाद है, this is the definition, this is the explanation of these elements. I hope now I'm very clear. ठीक है, अब उसमें set जो elements X है, what are those? बेटा they are integers. X is an integer. So every element X in this set is an integer, which means whole numbers हैं from 15 to 25. Clarity बेटा? अब इसमें कोई डाउट? ठीक है, सो ये बेटा कोलन के बाद इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन. आगे सारी एक्सप्लेनेशन होती है इसी एलिमेंट X की. आई होप दिस इज क्लियर नाउ. ठीक है बेटा, आई टेल माई स्टूडेंट्स के अगर इस तरह बेटा ये जो डॉट 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 इस तरह का पैटर्न है, तो इफ इट्स अ स्मॉल सेट बेटा प्लीज राइट द सेट्स. फिर बड़ी क्लैरिटी हो जाती है इंटरसेक्शंस में, यूनियंस में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने में. इट बिकम्स रियली सिंपल. तो सेट X हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 बेटा 7 8 9 and 10. राइट बेटा, सेट Y लिख लेते हैं 2 4 6. आगे बताओ बेटा इवन क्या आएंगे नंबर्स? इवन नंबर्स 8 10. राइट, इसी पैटर्न को कंटिन्यू करना है 12 14 16 18 and 20. राइट, वेरी सिंपल. ठीक, आगे बेटा सेट Z ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया. क्लैरिटी? चलो लेट्स रीड द क्वेश्चन नाउ. बेटा इट सेज सेट A में क्या है जी? X इंटरसेक्शन Y. ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, यू हैव टू राइट दिस सेट. राइट, सो X और Y की इंटरसेक्शन जरा देखो क्या है. बेटा 2 इज कॉमन इन बोथ. ठीक, 4 इज कॉमन इन बोथ, 6 इज कॉमन इन बोथ एंड 8 इज कॉमन इन बोथ. ठीक, और 10 इज ऑल्सो कॉमन इन बोथ द सेट्स. इसमें कोई डाउट? चलो, सो 2 4 6 8 10 ये हो गया ना इंटरसेक्शन, मींस कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द टू सेट्स. बस ये बेटा आप लिख दो 2 4 6. ठीक है, 8 and 10. बड़े ध्यान से बेटा, वेरी सिंपल, यू गॉट अ मार्क फॉर दैट. चलो बी पार्ट जरा मुझे बताओ. व्हाट इज बी पार्ट? Y इंटरसेक्शन Z. चलो Y और Z में कॉमन एलिमेंट जरा मुझे बताओ, Y और Z में. सो Y बेटा है 2 4 6 8 10. ठीक, उसके बाद बेटा आपके पास क्या आ जाते हैं 12 14 16 18 20. तो Z में आपके पास कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं? राइट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 15. बेटा एक 16 कॉमन आ रहा है दोनों में, इसमें कोई डाउट? बड़े ध्यान से आपने चेक करना है. 18 कॉमन आ रहा है बिकॉज Y इज अ सेट ऑफ इवन नंबर्स. ठीक, 20 कॉमन आ रहा है दोनों में. ठीक, राइट बेटा, 16 कॉमन आ रहा है
18 कॉमन आ रहा है एंड 20 कॉमन आ रहा है, बिकॉज सेट Z तो 15 से स्टार्ट हो रहा है और सेट Y इज अ सेट ऑफ इवन नंबर्स, ठीक, और 20 पे सेट Y फिनिश हो रहा है, तो ओनली 16, 18 एंड 20, 16, 18 एंड 20. इट्स सो सिंपल. अब तो बेटा यू लर्न द सेट्स, चेक कर लेना कुछ सिली मिस्टेक ना हो. बस ध्यान से बेटा फोकस के साथ आपने एलिमेंट्स चूज करने. क्लैरिटी? ठीक है. सेट Z 15 से स्टार्ट हो रहा है, जस्ट पिक द इवन नंबर्स टिल 20, तो 16, 18 एंड 20. क्लैरिटी? दिस इज द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट Y एंड सेट Z. क्लैरिटी? चलो जरा सी पार्ट देख लेते हैं बेटा. X इंटरसेक्शन Z, ये जरा मुझे सेट बताओ. X और Z की इंटरसेक्शन बताओ, जरा सोच के बताओ. सेट X फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, सेट Z तो 15 से स्टार्ट हो रहा है, सो देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग कॉमन इन बोथ द सेट्स. तो बेटा इधर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, यू गिव द एम्प्टी ब्रैकेट्स या ये फाई का सिंबल. ठीक, एम्प्टी ब्रैकेट्स के अंदर ये फाई का सिंबल नहीं देना, दिस इज रॉन्ग. दिस मीन्स देयर इज एन एलिमेंट इनसाइड द ब्रैकेट, सो दिस इज रॉन्ग. ईदर एम्प्टी ब्रैकेट्स और फाई का साइन फॉर द नल सेट. वेरी सिंपल. क्लैरिटी बेटा? अच्छा, अब डी पार्ट की जरा सेट नोटेशन देखो बेटा. ये n ऑलरेडी डिस्कस किया है, स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट. ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X यूनियन Y. तो बेटा यूनियन मींस दोनों को कंबाइन कर दो विदाउट रेपिटेशन. ठीक है, तो सेट X के कितने एलिमेंट्स आ गए? 10. सेट X के कितने एलिमेंट्स आ गए? 10. 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. राइट. अब Y के वो लेने विदाउट रेपिटेशन. ठीक है, 10 तक तो छोड़ दो, ये ऑलरेडी हमने इंक्लूड कर लिए. आफ्टर दैट काउंट कर लो, 1 2 3 4 5. 12 से लेकर 20 तक कितने हो गए? 5. सो 10 प्लस 5. सेट नोटेशन नहीं डालनी, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है यू जस्ट हैव टू राइट द नंबर. ये बेटा आ गया 15. ये कितना आ गया? 15. सिंपली काउंट देम विदाउट रेपिटेशन. ठीक है, और इसमें मैं एक और कॉन्सेप्ट भी बेटा डिस्कस करता हूं कि इफ इट्स अ स्मॉलर सेट, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं बेशक यू राइट, अगर कोई कंफ्यूजन आ रही हो, फर्स्ट यू राइट द सेट. चलो सेट X के एलिमेंट्स बताओ. 1 2 3 बेटा क्या आएंगे? 4 5 6 7 8 9 10. इसमें कोई डाउट? अब सेट Y के कंबाइन कर लेते हैं, यूनियन लिख लेते हैं ना, विदाउट रेपिटेशन. सो 2 से 10 तक इवन नंबर्स तो ऑलरेडी आ गए. सो आगे बोल दो सेट Y के 12 14 16 18 एंड 20. इसमें कोई डाउट बेटा? इसको काउंट कर लो. सो ये कितना आ गया? 1 से लेकर 10 तक 10 11 12 13 14 एंड 15. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X यूनियन Y इज 15. इसमें कोई डाउट बेटा? क्लैरिटी? चलो ई पार्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Z. चलो ये काउंट कर लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Z. ये तो आप बेशक वैसे काउंट कर लो. 15 भी इंक्लूसिव है, 20 से 25 तक है, 25 भी इंक्लूसिव है. राइट, ये तो बेशक आप फिंगर्स पे काउंट कर लो. सो बेटा ये कितने बन जाएंगे? 11, बिकॉज 25 और 15 इंक्लूसिव है. ठीक है, काउंट कर लो, ये कितने बन जाएंगे? 11. इसमें कोई डाउट? ये तो सिंपल आपने काउंट ही करने. 15 16 17 काउंट कर लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11. क्लैरिटी बेटा? सिंपल काउंट करके लिखने. चलो लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X यूनियन Z. बड़ा सिंपल है. F पार्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X यूनियन Z. चलो बेटा X और Z का यूनियन जरा मुझे बताओ. अगेन एलिमेंट X के ऑल 10 एलिमेंट्स. ठीक है जी, प्लस Z, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Z अभी हमने लिखा है 11, बिकॉज देर इज नथिंग कॉमन. X और Z में देर इज नथिंग कॉमन. ये चीज आपने देखनी है. राइट, यूनियन, व्हेन यू राइट द सेट यूनियन, इट्स विदाउट रेपिटेशन. कॉमन एलिमेंट्स नहीं लिखने आपने, कॉमन एलिमेंट्स रिपीट नहीं करने. सॉरी, राइट, यू डोंट रिपीट द कॉमन एलिमेंट्स, यू जस्ट राइट देम वंस. सो 1 से लेकर 10 तक, और Z तो स्टार्ट ही 15 से हो रहा है, सो देयर इज नथिंग कॉमन. सो इसलिए बेटा एलिमेंट X के 10 एलिमेंट्स और Z के अभी हमने काउंट किए ऊपर 11. सो व्हाट इज 10 प्लस 11? 21.
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन जेड कितना आ गया? 21. राइट बेटा? आई होप दिस वॉज वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड. अगेन बेटा, इट्स जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन. क्लैरिटी बेटा? ओके बेटा, लेट्स लुक एट अ लास्ट क्वेश्चन. अगेन इसमें बेटा कुछ थोड़े से ऐसे नोटेशंस हैं, यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड दो सिंबल्स. ठीक है? ओके, वंस अगेन, अब लैंग्वेज तो बेटा सेट लैंग्वेज शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर. Set A has elements 2, 3, 5, 7, perfectly fine. Set B has elements 1, 2, 3, dot, dot, dot means continuation hai beta of the same pattern till 9. So first 5 natural numbers. Clarity? Find beta A part. ठीक है? A intersection B. So I tell my students to write the complete sets. A तो complete है बेटा. जरा set B हम लिख लेते हैं. तो what is set B? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. इसमें कोई डाउट बेटा? चलो सेट ए भी लिख ही लेते हैं. 2, 3, 5, 7. क्लैरिटी? सो ए पार्ट. अब तो इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स. ए इंटरसेक्शन बी. हाँ जी, क्या सेट होगा? कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स. सो बेटा 2, 3, 5, 7 दोनों में कॉमन है. दैट्स इट. कोई मिसिंग तो नहीं है? बिकॉज सेट बी तो फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स हैं, सो उसमें 2, 3, 5, 7 आएगा ही आएगा. ये बेटा आ गए कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ द सेट्स. क्लैरिटी बेटा? बी पार्ट. ए यूनियन बी. यू सिंपली कंबाइन द टू सेट्स विदाउट रेपिटेशन. ठीक है? तो बेटा बिकॉज सेट ए ऑलरेडी कंटेन हो रहा है सेट बी में, तो सेट बी पूरे का पूरा आ जाएगा. राइट? 1, 2, 3 अप टिल 9. ये बेटा आ जाएगा ए यूनियन बी. इसमें कोई डाउट? अब तो बड़ी थॉरो प्रैक्टिस हो गई है. सी पार्ट. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. चलो, एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ये नहीं बेटा भूलना. ये हमने बड़ा ऑलरेडी डिटेल में इस पे डिस्कशन भी की है और इस पे हमने फोकस भी किया है. राइट? सेट सिंबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. चलो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे बेटा? मुझे बताओ. ए इंटरसेक्शन बी ऊपर आपने सॉल्व किया, जस्ट काउंट देम. सो क्या आ जाएगा? 1, 2, 3, 4. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज 4. इसमें कोई डाउट? ठीक हो गया. चलो, डी पार्ट हम इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं. व्हाट इज डी पार्ट बेटा? इट सेज 1 and 4 जो सेट है इंटरसेक्शन ए. राइट? देयर इज अ सेट 1 and 4. ठीक है? क्लैरिटी बेटा? देयर इज अ सेट 1 and 4 इंटरसेक्शन ए. तो मुझे बताओ इन दोनों सेट्स की, सेट ए हमारे पास इट्स एब्सोल्युटली क्लियर. ये बेटा हमारे पास सेट ए है 2, 3, 5, 7. और देयर इज अ सेट 1 and 4, सेट कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है. इन दोनों सेट्स में कुछ ओवरलैपिंग हो रही है? इन दोनों सेट्स में बेटा कुछ कॉमन है? ये मुझे बताओ. इज देयर एनीथिंग कॉमन? नो. सो सिंपल नल सेट आ जाएगा. सो ईदर यू गिव द एम्प्टी ब्रैकेट्स और यू गिव दिस फायर साइन. ठीक है? ये फायर साइन आपने, यू डोंट नीड टू पुट दिस इनसाइड द ब्रैकेट. दिस वुड बी रॉन्ग. हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस कर लिया. क्लैरिटी? अच्छा, ओके. ये तो ऑलमोस्ट सिमिलर डिस्कशन थी बेटा. नाउ द रीजन आई चोज दिस क्वेश्चन फॉर यू इज दिस सेट लैंग्वेज. ठीक है? ये किस चीज का सिंबल होता है जरा मुझे बताओ. ये ई पार्ट जरा देखने लगे. व्हाट इज ई पार्ट? ये किस चीज का सिंबल होता है? सी एंड देयर इज अ लाइन इन बिटवीन. ठीक बेटा, ये होता है बिलोंग्स टू. बिलोंग्स टू. अगेन अगर ये एक्सप्रेशन में लिखा होता यू कुड हैव पिक दैट इजीली, बट ये बेटा सिंबल्स में, मैथमेटिकल सेट नोटेशन में लिखा हुआ है. वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग्स बेटा. एंड रिमेंबर दैट बेटा, रिमेंबर दैट ये एलिमेंट्स के लिए सिर्फ होता है. ठीक है? ये सिर्फ किसके लिए होता है? इट इज ओनली फॉर द एलिमेंट्स. ये सेट्स के लिए हम नहीं यूज करते. मैं लिख देता हूं, नॉट यूज्ड फॉर सेट्स. नॉट यूज्ड फॉर सेट्स. ठीक है? ये सिर्फ एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए यूज होता है. ठीक है? क्लैरिटी बेटा? ये सेट्स के कनेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज नहीं होता. ठीक है? सिर्फ एलिमेंट्स के लिए होता है. ओके, लेट्स डू दिस पार्ट ई. स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. चलो जरा देखते हैं.
सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है बेटा, अगेन अभी हमने डिस्कस किया है कि बिलोंग्स टू का साइन सिर्फ एलिमेंट्स के लिए यूज हो सकता है, नॉट टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स। ठीक है, सो ये तो वैसे ही हो गया फॉल्स, इसमें कोई डाउट? ठीक है, क्लैरिटी? अच्छा, जरा अब देखते हैं एफ पार्ट क्या है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। यस, ये नोटेशन है जो सेट्स के रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज होती है। बिलोंग्स टू तो हमने कोई रिलेशन नहीं पढ़ी इन द सेट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट बेटा? क्लैरिटी? तो ये बेटा जो सिंबल है बिलोंग्स टू का, ये बेटा एलिमेंट्स के लिए यूज होता है। आई होप आई एम एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, सो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये देखते हैं। दिस इज अ करेक्ट नोटेशन। लेट्स सी इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी और नॉट। तो बेटा हमने ऑलरेडी इसको डिफाइन किया हुआ है। यस, ए हैज एलिमेंट्स 2 3 5 7 जो कि सेट बी में कंटेन हो रहे हैं। सेट बी इज अ लार्जेस्ट सेट, सो वी कैन से सेट ए इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ सेट बी। कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट सेट ए में नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यस, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। यस, दिस इज ट्रू। इसमें कोई डाउट? क्लैरिटी बेटा? ओके, जी पार्ट देखते हैं। 9 बिलोंग्स टू बी। हाँ जी बेटा, सॉरी, 9 इज अ सबसेट ऑफ बी। मैं बिलोंग्स टू कह रहा हूं, ये बिलोंग्स टू का तो साइन ही नहीं है, ये तो सबसेट का साइन है। सो 9 इज अ सबसेट ऑफ बी। सो बेटा 9 तो कोई सेट नहीं है। ईदर द सेट इज ए, आप देख रहे हैं, ईदर द सेट इज ए और द सेट इज बी। 9 तो ये तो सेट नोटेशंस के कनेक्शन के लिए यूज होता है। सो दिस लैंग्वेज इज फॉल्स। ये तो एक एलिमेंट है ना, एलिमेंट के लिए बिलोंग्स टू का साइन आता है, ये जो हमने डिस्कस किया है। इफ देयर वाज दिस साइन, ठीक है, ये जो अगर सॉरी अगर हम बेटा बिलोंग्स टू का साइन यूज करते, देन वी वुड हैव डिस्कस दिस कि 9 बिलोंग्स टू बी। यस, फिर हम कहते ट्रू। ठीक है, क्लैरिटी? बट ये सिंबल क्या है? 9 इज अ सबसेट ऑफ बी। 9 तो कोई सेट ही नहीं है। इट्स नॉट रिटन इन सेट नोटेशन। जैसे डी पार्ट में देर इज अ सेट रिटन, हम उस पर कॉमेंट कर सकते हैं, उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। एलिमेंट का कोई कनेक्शन नहीं बेटा। सो दिस इज फॉल्स लैंग्वेज। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। क्लैरिटी? एलिमेंट का सेट नोटेशंस में हम सेट के साथ कनेक्शन नहीं लिख सकते। क्लैरिटी? हाँ, ये कह सकते हैं दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू अ सर्टेन सेट और डज नॉट बिलोंग्स टू। जरा मुझे बताओ, डज नॉट बिलोंग्स टू यहां लिखते हैं। इफ एन एलिमेंट, लेट्स से मैं कहता हूं, ये मुझे जरा स्टेटमेंट बताओ। एज के बाद जरा आई पार्ट देख लेते हैं। अगर मैं लिखूं 10 बिलोंग्स टू सेट ए, व्हाट इज सेट ए? 2 3 5 7। जरा मुझे बताओ 10 बिलोंग्स टू सेट ए, ट्रू या फॉल्स? नो, इट डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ये बेटा फॉल्स हो जाएगा। और डज नॉट बिलोंग्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? ये बिलोंग्स टू का साइन एंड यू जस्ट पुट अ लाइन ऑन दैट। ये होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। ये भी आ जाता है एग्जाम्स में, सो यू शुड बी फेमिलियर विद दिस सिंबल। ये होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, सो अगर ये नोटेशन लिखी होती, सो हम लिखते 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये फिर ट्रू होनी थी। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। क्लैरिटी बेटा? ठीक हो गया ना? इसमें कोई डाउट किसी को? चलो, सो 9 इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी बिकॉज 9 इज एन एलिमेंट। सबसेट्स तो होते हैं ना, सेट्स को हम डिस्कस करते हैं। ठीक, और बी इज अ सेट। सो ये वैसे ही स्टेटमेंट, दिस इज फॉल्स। ओके, जरा एच पार्ट देखते हैं बेटा। 3 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ए इंटरसेक्शन बी हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये हमारे सामने सेट ए इंटरसेक्शन बी। सो 3, यस। अब ये एलिमेंट को हम डिस्कस कर सकते हैं बिकॉज बिलोंग्स टू का साइन हम एलिमेंट्स के लिए यूज करते हैं बेटा, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। तो 3 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। यस, दिस इज ट्रू। 3 इज पार्ट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लैरिटी बेटा? सो ये बेटा कुछ और सिंबल्स थे। आई होप नाउ दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर बेटा। आई हैव ट्राइड टू कवर in detail the concepts of sets, what type of questions, उसकी set language क्या है, set notations क्या है। shading part पे मैंने I've emphasized a lot because इसमें normally बड़ी confusion होती है, और उसके जो word problems आते हैं उसको भी हमने discuss किया है। right बेटा? I hope this is clear. Any confusions, any ambiguities, बेटा do tell me in the comments. ठीक है, चलो।